जय हिंद एवरीवन। एसएस ज्ञान की न्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एसएस ज्ञान 47 और आवर यूट्यूब चैनल फ्रॉम आ कैंडिडेट जर्नी टू a recommended candidate journey. This is day 14 of 30-day 30 picture discussion series. So this is the picture of the day. Talking about this picture. So in this picture you can see a man is hiding behind a wall and he is pointing toward a direction, and there is another man who is going towards this direction, and this is something you can see. It seems like a gun. You can see it's a gun, or you can perceive something like that. It depends upon what you perceive. Okay, and this is a hut and a person is going toward this, and you can see the terrain, or it is like a mountain or something like that. Okay, so in this picture you see the two characters. One man is hiding behind something and another. Most of the people are talking about it is a projector. Somebody is showing a picture or something, or making documentary like that. So it could be your perception. Okay, आप इसमें प्रोजेक्टर लेके भी लिख सकते हैं, बट आई से कि प्रोजेक्टर लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे लिखें कि एक आदमी जो पीछे छुपा हुआ है एंड ये पॉइंट कर रहा है किसी और को। ओके, क्योंकि प्रोजेक्टर कैसे होता है, प्रोजेक्टर ऐसे होता है ना, ऐसे। तो प्रोजेक्टर यहाँ नीचे तक तो होता नहीं है। हाँ, आप अगर आपको लेना है, इफ यू वांट टू सी एंड इफ यू हैव अ गुड थीम यू कैन डू दैट आल्सो। आई विल नॉट से कि ये नहीं लिखना है, जरूरी नहीं। बट नाउ what you see, that is the biggest question. A man is hiding behind a wall and pointing hand. तो ये मैन क्या कर रहा है, वॉल के पीछे छुपा हुआ है एंड ये पॉइंट कर रहा है एक डायरेक्शन में अपने हैंड को। ओके, एंड अनदर पर्सन इज रनिंग अवे आउटसाइड। ये यहां से क्या कर रहा है, एक आदमी दूसरी तरफ को भाग रहा है। एंड द सीन लुक्स टेंस, रिस्की और एक्शन ओरिएंटेड है, थ्रेट है, चेज और डेंजर। अब आपने सीन को समझना है कि ये सीन किस सिचुएशन से है। अगर कोई आदमी छुप रहा है, किसी को इंडिकेट कर रहा है, एक आदमी भाग रहा है, तो आप उसमें, आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल सिचुएशन के साथ आप नहीं जा सकते हैं, बट इट इज अबाउट कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड ना करें। ओके, द सीन लुक्स टेंस, रिस्की और एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड है ना, बिकॉज यू हैव टू टेक द एक्शन। यहाँ पे ऐसे तो नहीं रख सकते कि टीचर है, बच्चे से बोल रहा है कि जाओ उधर जा। सो इट कुड बी योर इमेजिनेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट introduction of a hero, Rohan, 26, an Indian army soldier from the Kumaon regiment. This is the introduction of a hero. Now coming to the main story. Rohan, 26, Indian army soldier from the Kumaon regiment, was on the 1 month leave in his hometown. During the period, he was helping the local youth to prepare for the defense examination and physical fitness. One evening, after finishing the training session on nearby hill, he was returning home when he noticed a suspicious man running toward a deserted house. Rohan sensed something was wrong. He quietly followed him and took cover behind a wall. Through the window, he saw that the man was armed with a pistol and trying to threaten another person inside the house. Understanding the seriousness of the situation, Rohan immediately called the local police and informed about the armed suspect. Meanwhile, he prevented the harm. Rohan kept a close watch to the criminal. When the armed man tried to escape, Rohan came out from the behind the wall and warned him to drop the weapon and use the army training to overpower him safely. Sooner the police arrived and arrested the criminal, and trapped person were rescued without any injury. Okay, so this is about the story. आपने यहाँ पे देखा कि एक लड़का है जो कि जो कि आर्मी में एक सोल्जर है। यू कैन लाइक एन ऑफिसर ऑल्सो, तो एक ऑफिसर भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये अपनी छुट्टियों में घर आया था, इसने देखा कि बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा था कि फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो उसने देखा कि एक आदमी, एक सस्पिशियस आदमी है जो एक डिजर्टेड घर के अंदर जा रहा है। जब वो घर के अंदर जा रहा था तो उसको लगा सस्पिशियस है कुछ। जब उसने चेस करा, ही गॉट टू नो कि ये पर्सन किसी और से पैसा ले रहा था जबरदस्ती गन पॉइंट पे। तो उस सिचुएशन में इसने कैसे टैकल किया, तो इस पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक स्पाई है, वो गया, उसने डिटेल गैदर करी और वापस आया। इट कुड बी योर परसेप्शन। थीम्स बहुत सारी हो सकती हैं फॉर अ सिंगल पिक्चर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। प्लीज मेक श्योर कि ये एक्शन ओरिएंटेड जो लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर है, यहाँ पे आपने एक्शंस लेने हैं। एवरी पिक्चर इज एक्शन ओरिएंटेड, बट इट इज अबाउट कि आपके ऐसे एक्शंस कहाँ पे आएंगे कि आपने उस सिचुएशन में क्या किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये हाइड होके किसी को देख रहा है, फिर वो कहीं जा रहा है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू? आपने उसको चेस करके आपने पता लगाया कि क्या है, कुछ सस्पिशियस क्या फिशी है, उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन दिया। दिस इज अबाउट द स्टोरी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट the word of the days. First is die. I'm talking about the negative words. Okay, so these are the negative words excluding this one. Fear dies when confidence grows. When you build the confidence, so your fear dies. आप पहली बार इंटरव्यू में जाते हैं, ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आपको थोड़ा डर लग रहा होता है, नर्वसनेस होती है, बट टाइम के साथ वो चली जाती है। व्हाई? बिकॉज यू बिकम कॉन्फिडेंट। So when confidence grows, fear dies. Now talking about the lose, even if you lose, you learn something. आप स्कूटी चलाते हुए गिर गए, पर आपको ये तो पता चला ना कि रोडों में ब्रेक नहीं लगाना है, मडी एरिया में ब्रेक नहीं लगाना है, या जो डिस्क ब्रेक है उसको एकदम से नहीं लगाना है। There should be a combination of both the brakes. So when you lose, even if you lose, you learn something. Okay. Now talking about the abuse, law exists to prevent abuse. तो एब्यूज में क्या होगा, लॉस क्यों है, क्योंकि वो एब्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ एब्यूज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिवेंज, चूज सक्सेस ओवर रिवेंज। आपको किसी ने बोल दिया कि यार तेरे से तो कुछ नहीं हो पा रहा, एट द पर्टिकुलर टाइम डू यू टेक द रिवेंज और यू बिकम वेरी सक्सेसफुल सो दैट दैट पर्सन फील रिग्रेट कि मैंने उससे ये क्यों कहा होगा। सो दिस इज अबाउट द ऑफिसर माइंडसेट, कि आप कितने पॉजिटिवली किसी सिचुएशन को लेते हैं। पॉजिटिवली डजंट मीन कि आपको कोई थप्पड़ मार के चला गया, आपने कहा कि कोई नहीं, नॉट अबाउट दैट। इट इज अबाउट कि अगर आपसे बेइज्जती का थप्पड़ किसी ने मारा है, तो आप अपने जीवन में इतना सक्सेसफुल हो जाएं दैट यू विल, उस इंसान को खुद ही पता चल जाएगी यार मैंने तो बहुत गलत किया था। ओके, सो चूज सक्सेस ओवर रिवेंज। नाउ टॉकिंग अबाउट द लीडर, अ ट्रू लीडर लिसन टू अदर्स। जैसे आप, एक ट्रू लीडर कौन होगा, यू आर अ ट्रू लीडर, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू द टीचर्स, you are listening to me. Okay, so it is about the true leader always listen to others, that's why he comes with the new innovative ideas. एक जो आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए अकेला जना बाहर नहीं फाड़ सकता है, so at the particular time you have to take the opinion of everybody. You are going in a GTO ground, आप दूसरे की भी सुनिए, when you are going for any other task अपने दोस्तों की भी सुन लीजिए, when you are at your home you have to listen to your parents also. Okay, so who is a true leader? A true leader is one who listen to others. If you are going to be prime minister of India, at the particular time you are not listening to the people of India, what is the use of being a prime minister? And the particular time you will not be a prime minister, क्योंकि आपको आप सुन ही नहीं सकते लोगों की। Okay, so who, आज तक लीडर कौन बने, जिन्होंने लोगों की सुनी है, अदर लोगों की सुनी है, they became the leader. Okay, so this is about the VAT. Now talking about the SRTs of the day. On a ship, doing his duty, he sees fumes and smoke coming out of the cabin. He, अब शिप पे है और वहां से स्मोक आ रही है, तो at the particular time what will he do? He immediately raised alarm, informed the ship fire control team, ensured evacuation nearby personals, used the available firefighting equipment to control the fire and help in preventing further damage. This is your course of action. Okay, now talking about, as I will telling you ना कि हाँ dash dash करके लिखो, एक action, then ensured evacuation nearby personnel, फिर dash, don't write and he will do this and he will do this, it takes time. Okay, so 60 situation को 30 मिनट्स में करना है, so at the particular time एंड लिखने में आप अपने 5 मिनट एंड में लिखने में बर्बाद कर देंगे, so और टाइम कैसे बचेगा? So if you want to tackle these SRTs in 30 minutes, तो आपने ये एंड नहीं लिखना होगा, you have to, जैसे एंड लिखा हुआ एंड हेल्प, don't write and, direct line help in preventing damage. Now talking about, he performs very poor in his studies, he analyze his weak areas, make a proper study plan, take guidance from the teacher, work regularly with the discipline,
regularly improves his and gradually improved his performance. This is what is required. Okay, now talking about the GTO. Okay, so this is a GTO task. You will get this structure in a GTO, this first structure. पीछे वाले को अभी नहीं ले रहे हैं. Talking about this first structure. इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है. So this particular time आपके पास बल्ली, फट्टा एंड रस्सी है. तो आप कैसे जाएंगे? फर्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपने एक फट्टा लगाया. ओके, दिस इज फट्टा. दिस वर्क एज अ काउंटर वेट एंड दिस वर्क एज अ फुलक्रम एंड हियर यू विल पुट योर वेट. ओके, तो यहाँ पे फट्टा पीछे अटका देना है. उसके बाद में ये वाले पे आपका फुलक्रम बन जाएगा एंड ये सामने की तरफ जिस डायरेक्शन में आपने जाना होता है, फट्टे को, बल्ली को जो भी लगाना है आपने उस डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है. तो यहाँ पर से आप सीधा यहाँ चले जाएंगे. When you will go in this direction, अब यहाँ पे आ गए. अब यहाँ पे देखिए ये है ना दो, इस पे नहीं रख सकते. ब्लू 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 प्रोहिबिटेड फॉर द मटेरियल. तो इस टाइम पे ये जो बल्ली रखी हुई है, इस बल्ली को आपने यहाँ ऊपर से रखा. ओके, दिस टाइप ऐसे करके यहाँ पे रोप बांध दी. ओके, तो ये क्या हो गया? दिस स्ट्रक्चर एज अ फुलक्रम. इसने अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटर वेट दिया और जब यहाँ से आप लोड देंगे ये ऊपर उठेगा, रस्सी इसको पकड़ लेगी. ये फुलक्रम तो है ही, और यहाँ से आप इस डायरेक्शन में यहाँ चले जाएंगे. टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने वाली जो है छोटा है और पीछे वाला बड़ा है. ये है ना, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर इसके सामने है. तो आपने क्या करना है, बड़े वाले स्ट्रक्चर में सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे है, इसकी जगह मैं आपको ये इन्वर्टेड एल दे दूं तो आप ये क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे क्लियरली शो करता हूँ, आपके पास इन्वर्टेड दिस स्ट्रक्चर है. ओके, और इसके सामने पे एक ये है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फट्टा डाल देंगे इसके नीचे से, यहाँ नीचे से. तो ये क्या काउंटर वेट देगा, ये फुलक्रम की तरह काम करेगा और यहाँ पे आपको आपका वेट जाएगा. ये दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकंड स्ट्रक्चर में क्या था आपके पास में इन्वर्टेड यू था पहले बार में, दूसरे बार में भी इन्वर्टेड यू था. आपने पहले इन्वर्टेड यू से सेकंड इन्वर्टेड यू के ऊपर से, बिकॉज एक की हाइट ज्यादा है एक की हाइट कम है, या अगर पीछे वाले की हाइट, अगर ऊपर पीछे वाले की इसकी हाइट अगर ज्यादा है तो आप ऐसे लगाएंगे. अगर सेकंड वाले की हाइट, अगर इसके पीछे दे दूं मैं एक, लेट सपोज कि आपको ये एक एल मिलता है और ये दूसरा मिलता है, तो आपने यहाँ पे से ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से रस्सी बांध दीजिए पीछे से. दिस इज वन टाइप, यू कैन डू दिस. और इसी पे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि देखिए, लेट मी टेल यू. ओके, अब आप इस पे कैसे करेंगे, ओके बता. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस पे लूप बना दीजिए ऐसे, इसके नीचे से फट्टा डाल दीजिए ऐसे, नीचे से काउंटर वेट मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे से क्या हो गया, इन्वर्टेड काउंटर वेट मिल गया. यहाँ रस्सी यहाँ पे लगा दी थी, यहाँ पे लूप बना दिया था, इसके नीचे से फट्टा डाल दिया, डायरेक्टली यू कैन गो. अगर आपने हाइट बढ़ानी है तो ऊपर से भी बना सकते हैं, नीचे से भी बना. मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं एक स्ट्रक्चर के. इसके बाद इस वाले पे आ जाते हैं. इस वाले पे आप डायरेक्टली यहाँ पर से ब्रिज बना सकते हैं, या यहाँ पे रस्सी बांध लीजिए, एक रस्सी यहाँ पे ऐसे, अगर डबल रस्सी मिलती है नेवी में, जो डबल रस्सी मिलती है वैसे, या ऐसे बताएंगे कि पहला स्ट्रक्चर आपका ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तो इससे यहाँ से फट्टा लगा के इसके ऊपर से, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये काउंटर वेट देगा एंड दिस वन विल बी योर फुलक्रम. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. तो इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि यहाँ से कैसे जाना है. यहाँ पे आपने सबसे पहले फट्टा लगा देना है, तो ये काउंटर वेट की तरह काम करेगा, ये बैक साइड के सपोर्ट के. आप यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा, इस पे लूप बनाया, यहाँ से फट्टा डाल दिया नीचे से रस्सी के ऊपर से, और ये वाले जो इन्वर्टेड ये यू है इसके नीचे से. तो आफ्टर दैट क्या होगा, जब आप आगे लोड पुश करेंगे तो ये ऊपर को खींचेगा, बट ये ऊपर नहीं जाएगा. ओके, देन यू विल गो फॉरवर्ड. फॉरवर्ड में क्या है, आपके पास में दो इन्वर्टेड यू है, तो पहले सेकंड इन्वर्टेड यू के ऊपर साइड से फट्टा लगाएंगे और जो पीछे वाला है इसके नीचे से फट्टा लगाएंगे, तो क्या होगा, सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओके, दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द जीटीओ में. कल आपको ये वाला इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि ये कैसे इस वाले स्ट्रक्चर में आपने काम करना है. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल फॉर टुडे. एंड आज हमारे पास में आर्मी डे है, सो आप सभी को भारतीय
सेना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। स्टे कनेक्टेड विद अस फ्रॉम आवर कैंडिडेट जर्नी टू अ रिकमेंडेड कैंडिडेट जर्नी। जय हिंद, जय भारत।